Discuss about this gas chromatography. Okay, so some retention indices in the gas chromatography. Okay, this will be not in your first sessional syllabus, but syllabus has to be completed, na. So we will be completing that syllabus. Okay. So now, retention indices in the gas chromatography. What is the use of these retention indices in So ultimately, we are going to start with the gas chromatography. Okay. So what is the use of these retention indices? So what they provide a consistent way for identifying and comparing the compounds based upon their retention time. Okay. So what they do, retention indices, they provide a consistent way for identification and comparison of the compounds based on their retention times. Okay. Okay. Under specific conditions. Okay. Are you getting what I am saying? So thereafter, the retention index, often expressed as Coates retention index, is a numerical value. Coates retention index is a numerical value, and it correlates a compound retention time to the retention time of the series of the standard reference compounds, usually the normal alkanes. Okay. Uh, I repeat the thing that we are talking about the retention indices in the gas chromatography. Ultimately, we have started with the gas chromatography. Okay. Now, what is the use of this retention indices in the gas chromatography? So they provide a consistent way. Consistent way for what? For identification and comparing the compound. Okay, based upon their retention times and under specific conditions. Okay. Now retention index. What is retention index? So basically, retention index in gas chromatography is expressed as Coates retention index, and basically it's a normal numerical value. Okay. And what it does, it correlates the compound retention time to the retention time of the series of the standard references compounds, usually what? Normal alkanes. Audible to all of you? Yes. Audible to all of you? I'm not getting your hearing or not. Please respond. Yes, sir. Okay. So now the Coates index, it is a representation of the retention index. It is given by what? Let's see. So now Coates retention index. So Coates retention index is given by I, capital I, and it is a method for it is a method basically utilized for gas chromatography for non-polar stationary phase. Okay, this MCQ can be asked. The Coates retention index in GC is used for what? For polar stationary phase. Okay, and index is based upon the logarithmic interpolation of the time of the unknown compound relative to the two reference alkanes. Okay, so what are that reference alkanes? Basically, usually the N alkanes. Okay, bracketing the compound's retention time. So now the retention time for a compound is calculated as I is known as the Coates retention index, is equivalent to 100 multiplied by N. Okay, where N is the number of the carbon atoms in the smaller alkanes and alkanes eluted before the compound, plus log TRX. Okay, now what is this TRX? TRX is the retention time of the unknown compound. Unknown compound means sample. Okay, minus log TRN. TRN is the retention time for the N alkane with the N carbon atoms, divided by log TRN plus 1. So now this TRN plus 1, what it is? It is the retention time of the next higher alkane with the N plus carbon atom. Okay, minus log TRN. Okay, minus log TRN.
Again, TRN is the retention time of the N alkane with the N carbon atoms. Agree? Hello. Yes, sir. हाँ, so very very बोलो। important concept. I is the Covalent's retention index of the compound. Usage. So they are independent of the column length. Very, very important. Carrier gas flow rate. Okay, so GC accompanies the carrier gas flow rate, or the slight temperature variations, Okay, so they are the reliable way to identify and compare the compounds. So they are the reliable way to identify and compare the compounds across different instruments and the methods. Normal alkenes are typically known as the standards because of their retention time increases in a predictable manner with the increasing molecular weight. So these are the usage. Now isothermal and the temperature programmed GC. So isothermal GC, in the isothermal conditions, constant temperature, the retention index remains constant and can be directly compared to the literature values. Thereafter, now the temperature program GC is known as for the temperature programmed runs. Corrections are sometimes necessary because the retention index can vary with the टेम्परेचर. ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, आइसोथर्मल एंड द टेम्परेचर प्रोग्राम्ड जीसी. जीसी मीन्स गैस क्रोमेटोग्राफी. आइसोथर्मल जीसी का मतलब क्या होता है कि आइसोथर्मल कंडीशन मीन्स द कांस्टेंट टेम्परेचर, और रिटेंशन इंडेक्स उसमें क्या रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, और डायरेक्टली उसको कंपेयर करते हैं आप लिटरेचर वैल्यू के साथ. एग्री? सुन रहे हैं आप? यस. यस सर। हाँ, और टेम्परेचर प्रोग्राम जीसी में क्या होता है कि जो टेम्परेचर प्रोग्राम रन्स होते हैं, करेक्शंस होते हैं, ये क्यों नेसेसरी होते हैं? क्योंकि रिटेंशन इंडेक्स यहाँ पे वेरी करता है. किसके हिसाब से? टेम्परेचर के हिसाब से. ठीक है, देखो ये कोवार्ट्स इंडेक्स है. ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़े हैं? आइसोथर्मल एंड टेम्परेचर प्रोग्राम. ना एप्लीकेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटेटिव एनालिसिस में रिटेंशन इंडाइसिस का काम क्या है? ये आइडेंटिफाई करते हैं अननोन कंपाउंड को. कैसे? कंपेयर करके. क्या कंपेयर करके? आर आई यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है ना, नोन स्टैंडर्ड्स का. फिर कंपैरिजन करेंगे क्रोमेटोग्राम्स को. तो जितने डिफरेंट लैब्स रहेंगे, जितने उतने रन्स रहेंगे, ठीक है ना, उनको कंपेयर करेंगे उनके रिजल्ट्स को. ठीक है ना, कैसे? बाय यूजिंग द आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेदर देन द रिटेंशन टाइम अलोन. अब स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है ना, इसको रिटेंशन इंडाइसेस बोलते हैं. ठीक है ना, और ये क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बेस्ड ऑन हाउ दे इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज. अब इनका फायदा क्या है? ये कंसिस्टेंट और रिप्रोड्यूसेबल रिजल्ट्स देते हैं. किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड के थ्रू वाया जीसी. जीसी मींस गैस क्रोमेटोग्राफी, स्पेशली डीलिंग विद द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स. एग्री? ओके विथ ऑल ऑफ यू? अरे समझा क्या? बहुत सादी चीज है. यस सर। हाँ, उसके बाद में आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग क्या होती है, अब वो देखते हैं. आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग में क्या होता है? यू हैव टू रन द एनालिसिस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसेस. एंड दिस द सिंपलेस्ट अप्रोच इन द जीसी, वेयर द कॉलम टेम्परेचर कैसे रखते हैं? अपन फिक्स रखते हैं, और इंस्टेड ऑफ बीइंग रैम्ड एज ए टेम्परेचर प्रोग्रामिंग. आई रिपीट, आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग किसमें होती है? गैस क्रोमेटोग्राफी में होती है. इसमें आप क्या करते हो? एनालिसिस को रन करते हो, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसेस. ठीक है ना, ये सिंपलेस्ट मेथड है जहां पे कॉलम टेम्परेचर को आप क्या करते हो? कांस्टेंट रखते हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग रैम्ड एज द टेम्परेचर प्रोग्रामिंग. एग्री? उसके बाद में फिर की फीचर्स क्या होते हैं आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग के? सबसे पहला क्या रहेगा? वही कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है ना,
ये इसको एक ही सेट ऑफ टेम्परेचर पे करते हैं, केयरफुली चूज करते हैं वोलेटिलिटी को, ठीक है ना, सैंपल के साथ में, और फिर इसको परफॉर्म करते हैं। सेकेंड थिंग क्या रहेंगी इसमें, स्टेशनरी फेज इंटरेक्शंस रहेंगे। तो स्टेशनरी फेज इंटरेक्शन में क्या होगा कि सेपरेशन इसमें किसके बीच में रहेगा, इंटरेक्शन कैसे होता है सैंपल कंपोनेंट और स्टेशनरी फेज में। और ये कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर इसके बाद में रिटेंशन टाइम स्टेबिलिटी। रिटेंशन टाइम क्या होता है भाई, पता है कुछ, क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है ना। रिटेंशन टाइम क्या होता है, वो ऐसा टाइम होता है स्पेसिफिक कंपाउंड का कि वो ट्रैवल करेगा क्रोमेटोग्राफिक कॉलम से, ठीक है ना, और इल्यूट होगा कहाँ पे, डिटेक्टर पे, इल्यूट यानी बाहर निकलेगा डिटेक्टर पे। वो एक ऐसा टाइम होता है स्पेसिफिक कंपाउंड में जो ट्रैवल करता है कहाँ से, थ्रू द क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, और इल्यूट होता है डिटेक्टर पे। जब अपन क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे तब ये बहुत बार बार अपने को स्ट्राइक हो, रिटेंशन टाइम आरटी बोल उसको। एग्री। हेलो, अरे समझ में आया, रिटेंशन टाइम क्या होता है, समझा क्या, सुन रहे हैं कि सो गए सब लोग। हेलो, हेलो सुन रहे हैं। यस सर। हाँ सुनो अच्छे से, एक बार फिर से बताता हूँ, बोलो तो। रिटेंशन टाइम क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ द टाइम अ कंपाउंड स्पेंड्स ऑन द कॉलम आफ्टर इट हैज बीन इंजेक्टेड, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन टाइम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और आरएफ वैल्यू क्या होती है, रिटेंशन फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना, इट इज द मेजर ऑफ पोजिशंस, ठीक है ना, ऑफ द कंपोनेंट्स इन अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, मेजर ऑफ पोजीशन ऑफ कंपोनेंट्स इन अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। एग्री। ओके। नाउ रिटेंशन टाइम स्टेबिलिटी में क्या होगा कि यहाँ पे टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, फिर उसके बाद में रिटेंशन टाइम भी कंसिस्टेंट रहेगा थ्रू आउट डिफरेंट रन यानी जितने आप सैंपल को रन करेंगे वो, प्रोवाइडेड द कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है ना। ऑप्टिमल फॉर सिंपल मिक्सचर्स, ठीक है ना, आइसोथर्मल जीसी बहुत आइडियल मेथड है फॉर एनालाइजिंग द सिंपल मिक्सचर्स, जहाँ पे कंपाउंड्स की वॉलेटिलिटी सिमिलर रहती है और वो सेपरेट होते इफेक्टिवली एट ए सिंगल टेम्परेचर। बहुत अच्छी चीज है। अभी तक हमने आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग में क्या क्या देखे वो देख लेते एक बार। आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग क्या होती है, रनिंग करने का एनालिसिस को कांस्टेंट टेम्परेचर पे थ्रू आउट द सेपरेशन प्रोसेस। सिंपलेस्ट अप्रोच होता है, यहाँ पे कॉलम टेम्परेचर को अपन फिक्स्ड रखते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग रैम्ड इन द टेम्परेचर प्रोग्रामिंग। की फीचर आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग का क्या है कि वहां कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, एंटायर एनालिसिस को अपन एक वन सेट ऑफ टेम्परेचर पे चलते हैं, केयरफुली चूज करते हैं उस पे बेस्ड अपॉन इट्स वॉलेटिलिटी। सेकेंड में स्टेशनरी फेज कंपाउंड इंटरेक्शन में हम क्या करते हैं, सेपरेशन यहाँ पे कैसे होता है, थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द सैंपल कंपोनेंट एंड द स्टेशनरी फेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांस्टेंट टेम्परेचर। रिटेंशन टाइम स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, रिटेंशन टाइम भी कंसिस्टेंट रहता है थ्रू आउट द डिफरेंट रन्स, ठीक है ना, प्रोवाइडेड द कंडीशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ऑप्टिमल सिंपल मिक्सचर्स में क्या करते हैं, आइसोथर्मल जीसी को आइडियलाइज करते हैं फॉर एनालाइजिंग सिंपल मिक्सचर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक चीज का ध्यान रखते हैं, जो कंपाउंड रहते हैं उनकी वोलेटिलिटी कैसी रहती है, सेम रहती है। जीसी में कैसा सैंपल को बर्न करते हैं ना, इसलिए वोलेटिलिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। एग्री। अरे एग्री, सुन रहे हैं आप लोग, सुने आपने। यस। यस सर। ना एडवांटेजेस ऑफ आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग, सिंप्लिसिटी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। सिंप्लिसिटी कैसे है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, ठीक है ना, इजी स्टेप्स है, और कोई कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इसकी जरूरत नहीं है इसमें। रिप्रोड्यूसिबिलिटी कैसी है कि टेम्परेचर फिक्स है, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिटेंशन टाइम्स का क्या होता है, जनरली हायर होगा, और वो कंपैरिजन भी बहुत आसानी से हो पाएगा, रिप्रोड्यूसेबल है इसलिए।
कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि मेंटेन करता है कांस्टेंट टेम्परेचर को, ठीक है ना, और एनर्जी भी कम लगती है, चेंजिंग द टेम्परेचर डायनेमिकली, रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम रहती है। एग्री? इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? क्या क्या है बताओ। सिंप्लिसिटी में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, कोई कॉम्प्लेक्स टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम नहीं चाहिए। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में क्या होता है कि टेम्परेचर फिक्स रहता है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी रिटेंशन टाइप की जनरली हायर रहती है, कंपैरिजन इजीली हो पाता है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने की वजह से कम एनर्जी में काम हो जाता है, और रेदर देन द चेंजिंग द टेम्परेचर डायनेमिकली, उसके वजह से क्या होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एग्री? एग्री? सर। यस सर। हाँ, नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ द आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, अब वहां पे कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को आप नहीं कर सकते, नॉट आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। यानी सैंपल में बहुत सारी वाइडल रेंज है वॉलेटिलिटी की, तो कंपाउंड विद वास्टली, जो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स रहेंगे, आइसोथर्मल कंपाउंड्स रहेंगे, ठीक है, उसमें आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग कोई काम की नहीं है, ठीक है ना। लोअर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड रहेंगे तो वो इल्यूट हो जाएंगे क्विकली, हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड रहेंगे तो वो ज्यादा टाइम लेंगे और इल्यूट भी एफिशिएंटली नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। लॉन्ग रन टाइम्स में क्या होगा कि हायर अगर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो एक्सेसिवली लॉन्गर रिटेंशन टाइम्स रहेंगे एट ए सिंगल और लोअर आइसोथर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना, उसकी वजह से एनालिसिस टाइम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर पुअर पीक शेप बोले तो हायर बॉइलिंग पॉइंट की वजह से क्या होगा, ब्रॉडनिंग होंगी, टेलिंग होंगी पीक्स में, ठीक है ना, और वो इंटरेक्ट बराबर नहीं कर पाएंगे विद द स्टेशनरी फेज एट द चूजन आइसोथर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। डिसएडवांटेजेस तीन है। कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है तो वोलेटिलिटी बहुत सारे रेंज रहेंगी, बहुत सारे बॉइलिंग पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है ना। आइसोथर्मल कंडीशंस वहां पे लेस इफेक्टिव रहेंगी, लोअर बॉइलिंग पॉइंट है तो इल्यूट हो जाएगा पटाख से, और अगर हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो जल्दी इल्यूट नहीं होगा। लॉन्ग रन टाइम्स में क्या हो रहा है, हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो एक्सेसिवली लॉन्ग रिटेंशन टाइम्स रहेंगे सिंगल में, लोअर आइसोथर्मल टेम्परेचर रहेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंडेड एनालिसिस टाइम मिलेगा। पुअर पिक शेप में क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपाउंड्स एग्जिबिट करेंगे ब्रॉड टेलिंग पिक्स को, और वो इंटरेक्ट नहीं करेंगे स्टेशनरी फेज के साथ में एट ए चूजन आइसोथर्मल टेम्परेचर। नाउ प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस देखते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर चूज करना पड़ेगा, कैरियर गैस जो रहता है गैस क्रोमेटोग्राफी में, उसके फ्लो रेट को चेक करना पड़ेगा। तो चूजिंग द टेम्परेचर में क्या करोगे, अब इसमें सबसे पहले अगर आपको टेम्परेचर चूज करना है तो पहले बॉइलिंग पॉइंट सैंपल का चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इट शुड अलाउ फॉर द एफिशिएंट सेपरेशन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वो सेपरेट कर पा रहा है क्या बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, वो भी चेक करना पड़ेगा। कैरियर गैस फ्लो रेट में आपको क्या चेक करना पड़ेगा, फ्लो रेट आपको चेक करना पड़ेगा किसका, हीलियम गैस का, हाइड्रोजन का, जो कैरियर गैस होती है। ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो रही है, इट इज यूज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द, टू हेल्प द मैनेज द सेपरेशन, थ्रू दिस हैज द लेस इफेक्ट ऑन द इम्पैक्ट देन द टेम्परेचर। एग्री? यहां तक समझा? यस? हेलो? हेलो? सुन रहे हैं आप लोग? समझा बेटा? Yes, sir. हाँ। अब एग्जाम्पल्स फॉर यूज ऑफ, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग कौन से सिचुएशन में यूज होता है, जहाँ सैंपल बहुत सिंपल है, कंपोनेंट्स वहां पे सिमिलर बॉइलिंग पॉइंट के है, तो आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। एनालिसिस टाइम भी है, जहाँ रैपिड है, वाइड रेंज ऑफ डायनेमिक रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं है, वहां पे आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसिटिव अगर सैंपल है तो उनको अगर एनालाइज करना है, और अगर हायर टेम्परेचर्स को अवॉइड करना है, ठीक है ना, हायर टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना, तो वहां पर आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग आपके काम आ जाएगा जीसी में। ना कंपैरिजन ऑफ द विद द टेम्परेचर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, टेम्परेचर प्रोग्रामिंग के साथ उसकी कंपेयरिंग करके देखते हैं क्या होता है। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर यूज करता है, बेस्ट फॉर सैंपल्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, नैरो है,
ठीक है ना। टेम्परेचर प्रोग्राम जीसी कैसे होता है कि इसमें इंक्रीजिंग टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द रन यानी जब आप सैंपल रन करते हो, ठीक है ना। उसके वजह से क्या होगा, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड होगा विद द वाइड रेंज ऑफ वोलेटाइलिटी। उसकी वजह से क्या होगा, अगर वाइड रेंज ऑफ वोलेटाइलिटी इसमें कंसिडर की है तो रिजोल्यूशन भी इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब कंक्लूजन क्या कहता है, आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, यूजफुल टेक्निक है फॉर एप्लीकेशन इन द जीसी, पर्टिकुलरली व्हेन सिंप्लिसिटी चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए, तो वहां पे आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग को कंसिडर करो। और जहां पे सैंपल का नैरो रेंज है, छोटा रेंज है वॉलेटाइलिटी का, वहां पे आप इसको यूज करो। अगर कॉम्प्लेक्स सैंपल्स है तो टेम्परेचर प्रोग्रामिंग आपके लिए ठीक है फिर वहां पे। एग्री? समझ में आया? Yes, sir. हाँ। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. हाँ। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है ना। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या होता है कि अपन अमाउंट ऑफ गैस को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, और दैट अमाउंट ऑफ द गैस जो डिसॉल्व हुई है लिक्विड में एट ए गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना। अब अगर गैस है तो हेनरी लॉ पक्का है, तो ये जो इसका टेम्परेचर और प्रेशर है गैस का, वो कौन गवर्न करता है, हेनरीज लॉ, ठीक है ना। और हेनरी लॉ क्या बताता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड में जो रहेंगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव। फिर से बताता हूँ, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस जो डिसॉल्व होती है इन द लिक्विड पे एट ए गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है ना। इसको ही गवर्न कौन करता है, हेनरीज लॉ, अपने पढ़े है 12th में, ठीक है ना। दैट स्टेट्स, अब हेनरी लॉ क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लिक्विड में जो भी रहेंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी पार्शियल प्रेशर के साथ में गैस अबव द लिक्विड। एग्री? ओके, समझा गया? हेलो? अरे समझा गया? हम जीसी की Yes, बात कर रहे sir. हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी की, हाँ। उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देख रहे हैं, ठीक है ना। इसके पहले अपन ने आइसोथर्मल प्रोग्रामिंग देखे, अब हम देख रहे हैं गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन गैस क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होता है, ऐसा प्रेशर होता है जो एक्सर्ट करते हैं वेपर ऑफ द लिक्विड के थ्रू, ठीक है ना, इन इक्विलिब्रियम विद द कंडेंस स्टेट। अब ये कंडेंस स्टेट कौन सी होती है, एक तो लिक्विड होंगी या फिर सॉलिड होती है, ठीक है ना। और कैसे टेम्परेचर पे होती है, एट ए गिवन टेम्परेचर पे होती है, ठीक है ना। तो ग्रास क्रोमेटोग्राफी में वेपर प्रेशर क्या इन्फ्लुएंस करता है कि कितने इजीली कंपाउंड ट्रांजिशन पे जाता है फ्रॉम लिक्विड फेज इन द सैंपल टू द गैस फेज। ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री? देखो फिर से बताता हूँ, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर इन गैस क्रोमेटोग्राफी देख रहे हैं अपन। वेपर प्रेशर क्या होता है, वो ऐसा प्रेशर होता है जो एक्सर्ट करता है कौन, वेपर, ठीक है ना। वेपर किसका, लिक्विड का या फिर सॉलिड का, ठीक है ना। किसमें, इक्विलिब्रियम में विद द कंडेंस स्टेट, ठीक है ना, कंडेंस फेज। तो कंडेंस फेज में कौन सी कंडेंस फेज होती है, लिक्विड या फिर सॉलिड एट ए गिवन टेम्परेचर। गैस क्रोमेटोग्राफी में वेपर इन्फ्लुएंस कैसे करता है, ठीक है ना, हाउ इजिली ए कंपाउंड, ठीक है ना, कैसे ट्रांजिशन कर रहा है, कहाँ से, लिक्विड फेज से सैंपल के गैस फेज में, कॉलम के। हायर वेपर प्रेशर, नाउ हायर वेपर प्रेशर में क्या होता है, कंपाउंड विद द हायर वेपर प्रेशर ये इजीली वोलेटाइल होते हैं, मींस वो इवेपोरेट हो जाएंगे फास्टली और गैस फेज में चले जाएंगे रेडीली, ठीक है ना। फिर कंपाउंड जनरली इल्यूट होंगे अर्लियर इन द क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस, ठीक है ना। लो वेपर प्रेशर में क्या करेंगे, कंपाउंड्स विद द लो वेपर प्रेशर इजीली लेस वॉलेटाइल होंगे, और वो किस में रहेंगे, लिक्विड फेज में रहेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि उनके इल्यूशन टाइम भी थोड़े लंबे रहेंगे, लेटर इल्यूशन टाइम्स मिलेंगे। एग्री?
अरे ओके, समझा क्या आपको? यस सर। अब हम वहां गैस देखिए, अब टेम्परेचर का क्या देखते हैं काम इन गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, टेम्परेचर का तो क्रूशियल रोल है ही, अपन ने देखी है। अगर सेपरेशन करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का लिक्विड में, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से क्या होगा कि गैस मॉलिक्यूल एस्केप होंगे, कहाँ पे, वेपर फेज में फटाफट। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा गैस क्रोमेटोग्राफी में, हेलो, हायर टेम्परेचर, हेलो, देखो अच्छे से 50,000 सुनो। बोलते हुए 13,000 बता रहे हैं। 22 PS 04 बात मत करो प्लीज। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज होंगी, उसके वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होंगी लिक्विड की। ठीक है ना, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल एस्केप होंगे वेपर फेज पे रेडीली। ठीक है ना, जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हायर टेम्परेचर पे आपको रिड्यूस रिटेंशन टाइम मिलेंगे। ठीक है ना, उसकी वजह से क्यों, ऐसा क्यों होगा, रिड्यूस रिटेंशन टाइम ही क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होगा इंटरेक्शन किसके बीच में भाई, एनालाइट, एनालाइट मीन सैंपल और स्टेशनरी फेज। अब अगर अपन ने डिक्रीज किया है टेम्परेचर, अगर आपने कम किया टेम्परेचर को, तो सॉल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में बढ़ेंगी, गैस मॉलिक्यूल्स इजीली एस्केप हो जाएंगे वेपर फेज में। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी में उसकी वजह से क्या होंगे, रिटेंशन रिटेंशन टाइम जो छोटे थे इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से, यहाँ पे वो लॉन्गर रिटेंशन टाइम आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे एनालाइट, एनालाइट मीन सैंपल इंटरेक्ट करेगा किसके साथ में, स्टेशनरी फेज के साथ में। एग्री, समझा? ओके यस विथ ऑल सर। ऑफ, हाँ। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। अब वहां पे आपका ये टेम्परेचर हो गया, प्रेशर देख लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या रहेगा, प्रेशर अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को और फ्लो ऑफ द कैरियर गैस को। ठीक है ना, किसमें, गैस क्रोमेटोग्राफी में। एग्री, सो इंक्रीज्ड प्रेशर, तो हेनरी लॉ क्या कहता है, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है ना, इसके कंटेक्स्ट में अगर गैस क्रोमेटोग्राफी देखा गया है तो हायर टेम्परेचर रहेगा, हायर प्रेशर रहेगा तो बेटर रेजोल्यूशन ऑफ पीक्स मिलेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि स्पेशली कुछ गैसेस रहती है जो लोअर, जिनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, कम होती है, उसके वजह से क्या होगा, फ्लो रेट इन्फ्लुएंस होगा, उसके वजह से क्या अफेक्ट होगा, रिटेंशन टाइम अफेक्ट होगा, और एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन अफेक्ट होगी। देखो फिर से बताता हूँ, इंक्रीजिंग प्रेशर में क्या होता है कि एज पर हेनरीज लॉ, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। उसके कॉन्टेक्स्ट में गैस क्रोमेटोग्राफी में हायर प्रेशर की वजह से क्या होगा, बेटर रेजोल्यूशन ऑफ पीक्स मिलेगा, स्पेशली कौन सी गैस के साथ में, विद द लोअर सॉल्युबिलिटी। और उसके बाद में इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फ्लो रेट ऑफ द कैरियर गैस विच इन टर्न अफेक्ट्स द रिटेंशन टाइम एंड एफिशिएंसी ऑफ सेपरेशन। अब डिक्रीजिंग प्रेशर में क्या होगा, अगर आपने कम किया प्रेशर को तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएंगी, उसके वजह से क्या होगा, क्विकर रिलीज हो जाएंगे एनालाइट्स गैस फेज में, उसकी वजह से क्या होगा, फास्टर इल्यूशन टाइम्स हो जाएंगे। ठीक है ना, और उसके साथ में एक चीज और कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, एफिशिएंसी सेपरेशन की, सेपरेशन भी कम हो जाएगा। एग्री, देखो ध्यान दो, फिर यस से सर। बोलता हूँ, डिक्रीजिंग प्रेशर में क्या होगा, कम किया आपने प्रेशर, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, क्विकर रिलीज हो जाएंगे एनालाइट्स, एनालाइट्स मीन सैंपल गैस फेज में, उसकी वजह से क्या होगा, इल्यूशन टाइम तो फास्ट आ जाएगा पर सेपरेशन एफिशिएंसी कम हो जाएंगी। नाउ समरी ऑफ इफेक्ट्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी। वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर है तो अर्ली इल्यूशन, ठीक है ना, मोर वॉलेटाइल कंपाउंड। लोअर वेपर प्रेशर है तो लेट इल्यूशन, लेस वॉलेटाइल कंपाउंड। ठीक है ना, टेम्परेचर में हायर टेम्परेचर है तो डिक्रीज्ड गैस सॉल्युबिलिटी, शॉर्टर रिटेंशन टाइम। लोअर टेम्परेचर है तो इंक्रीज्ड गैस सॉल्युबिलिटी, लॉन्गर रिटेंशन टाइम। प्रेशर में क्या होगा, हायर प्रेशर है तो इंक्रीज्ड गैस सॉल्युबिलिटी, बेटर सॉल्यूशन। लोअर प्रेशर है तो डिक्रीज्ड गैस सॉल्युबिलिटी, फास्टर इल्यूशन, पॉसिबली लेस कॉन्सिक्वेंट सेपरेशंस। एग्री, एग्री, हेलो,
Yes, sir. हाँ, नाउ कैरियर गैस सप्लाई एंड रेगुलेटर इन गैस क्रोमेटोग्राफी। सो कैरियर गैस क्या होते हैं? इनर्ट गैस होती है। एग्जाम्पल कैरियर गैस का कौन सा होता है? हेलियम है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है ना। इनका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन किसको? एनालाइट वेपर को, सैंपल वेपर को। कहाँ से? कॉलम से, ठीक है ना। कैरियर गैस क्या सप्लाई करते हैं इनको? इसमें रहता है गैस सिलेंडर रहता है, प्रेशर रेगुलेटर रहता है, और फ्लो कंट्रोलर रहता है। गैस सिलेंडर में क्या रहता है? कैरियर गैस रहेंगी हायर प्रेशर पे। फिर उसके बाद में जो प्रेशर रेगुलेटर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे हायर प्रेशर को। कहाँ से? गैस सिलेंडर से। लोअर कंट्रोलर प्रेशर सुटेबल फॉर द जीसी सिस्टम। फ्लो कंट्रोलर्स में क्या करेंगे? मीन्स ये मेंटेन करेंगे कांस्टेंट फ्लो रेट को कैरियर गैस के थ्रू आउट द सिस्टम, ensuring रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्यूरेसी किसमें? क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में। ये इंपॉर्टेंस है। स्केमेटिक डायग्राम में कैरियर गैस सिलेंडर रहेगा, जो लास्ट सिलेंडर रहेगा, जो कनेक्ट रहेगा जीसी के साथ में। प्रेशर रेगुलेटर रहेगा, shown as a device attached to the cylinder with a gauge and the monitor pressure, ठीक है, मॉनिटर करने के लिए प्रेशर को। फ्लो कंट्रोलर क्या करेगा? पोजिशन आफ्टर द रेगुलेटर, रेगुलेटर के बाद में लगा रहता है, टिपिकली एज शोन एज द वॉल्व एंड द इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लीडिंग टू जीसी सिस्टम्स। ठीक है, अभी आने वाला है वो स्केमेटिक डायग्राम। कॉलम ओवन में क्या रहते हैं? देखो, कॉलम ओवन जो रहता है ये क्या करता है? क्रोमेटोग्राफिक कॉलम को ये अपने पास में एकोमोडेट करके रखता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर जो ओवन के अंदर रहता है वो केयरफुली रेगुलेट होता है ताकि ऑप्टिमाइज सेपरेशन मिले, ठीक है ना। ओवन चेम्बर का काम क्या होता है? जो इंसुलेटेड एनक्लोजर्स होते हैं, कॉलम वहां पे प्लेस करते हैं। हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी हीट टू रीच एंड मेंटेन द डिजायर्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर कंट्रोलर क्या करता है? ये डिवाइस होता है जो अलाउ करता है प्रिसीजन प्रोग्रामिंग को टेम्परेचर पे, दैट इंक्लूड्स द रैंप रेट्स फॉर द प्रोग्रामिंग। फैन क्या करता है? इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है हीट का विद इन द ओवन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर कंट्रोल, ठीक है। ये देखो स्केमेटिक डायग्राम देखो अच्छे से, मैं आपको बता दूंगा। ओवन ओवन चेम्बर क्या करता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, और कॉलम कॉइल्ड इनसाइड होता है। हीटिंग एलिमेंट क्या करता है? सीरीज ऑफ कॉइल्स रहेंगी उसके अंदर में, ठीक है ना। टेम्परेचर कंट्रोलर का काम क्या होता है? ये डिस्प्ले होता है इंटरफेस पे, कनेक्ट होता है ओवन के साथ में, ठीक है ना, अलाउ फॉर द प्रोग्रामिंग। फैन क्या करता है? इलिस्ट्रेटेड अ स्मॉल सर्कुलर कंपोनेंट इनसाइड द ओवन एंड इंश्योर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अच्छे से, ये देखो, ये सिलेंडर है, ये कैरियर गैस सप्लाई है, ये टेम्परेचर कंट्रोलर है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना। गैस क्रोमेटोग्राफी, ये टेम्परेचर ओवन है। एग्री? ये देखो अच्छे से, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको ये सब चीज। सादा मैकेनिज्म है। अब देखो कैरियर गैस सप्लाई कैसे देते हैं अपन। कैरियर सिलेंडर है यहाँ पे, कैरियर गैस सप्लाई है, ओवन है, यहाँ कॉइल्स है, ठीक है ना, और यह है टेम्परेचर कंट्रोलर सिस्टम से। एग्री? अरे समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. एकदम सादा है। हाँ, ये देखो अभी ये पूरा का पूरा, वो अभी वो डिस्टॉर्टेड था दो इसमें। ये देखो कैरियर गैस सप्लाई, कैरियर गैस इसमें से निकलेंगी। कौन सी कैरियर गैस रहती है? हेलियम रहती है, नाइट्रोजन रहती है, ठीक है ना, हाइड्रोजन रहेंगी। ओके, कैरियर गैस ये देखो इवेपोरेटर, फिर इसके बाद में गैस क्रॉस ये है। उसके बाद में यहाँ पे देखो कॉइल्स लगी हुई है, टेम्परेचर कंट्रोलर है। एग्री? Yes, समझ में आया क्या? yes, yes, sir. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। समझ में आया आपको? ओके, अटेंडेंस लेने दो मेरे को, कहीं जाओ मत, हाँ। मैं लॉक कर रहा हूँ सिस्टम को।
Sir, 31 and 63 sharing same device. Sir, 27 and 41 sharing. वेट, डिस्टर्ब नहीं करने का अभी। कल से कोई भी डिवाइस नहीं है शेयर नहीं करने का। नंबर बताओ कौन Sir, से है वो? 27 and 41. हाँ, हेलो। 27 and 41. हाँ, और Sir, 31 and 63 भी। बस हो गया, अभी फुल एंड फाइनल है। हाँ, ठीक है। क्या ओके। क्या ओके, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सर 23 DPH 12 भी। नहीं नहीं, अभी ऐसे ऐसे तो बहुत आते रहेंगे बीच में फिर। and 20 sharing same screen. नहीं, अब सेम स्क्रीन किसी ने शेयर नहीं करने का। अगर सेम स्क्रीन नहीं शेयर करना है तो फिर क्या मतलब है फिर? लॉजिक है कोई?